हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्लास 6 अभी आपका वो चैप्टर जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, उसकी लास्ट एक्सरसाइज अभी बची है। तो 14.6 करेंगे हम आज अगेन द डिफरेंट in the different manner, because I think कि that manner is more convenient to you all to see how I am putting that arc and how firmly I am holding that rounder on the pen on the paper. And likewise you all have to do the same. Each and every step you have to repeat for solving that particular questions. So बिना किसी टेंशन लिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे 14.6 क्वेश्चन नंबर 1 से टिल एंड। और एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको सारे के सारे एंगल्स को प्रॉपरली देखना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए, आपको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है। प्रोटेक्टर सिर्फ आप चेक करने के लिए देखेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम सारे के सारे कंस्ट्रक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, कंपास एंड पेंसिल with very honesty, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 14.6। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 14.6। इसमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ POQ measure 75 degree and we have to find the line of symmetry of this angle. So just draw one line segment, that is PQ, ठीक है। PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है अब हमको। एंड आफ्टर दैट दिस PQ, ठीक, PQ, देन you have to draw with center Q with some suitable radius. You have to draw an arc to cut PQ at R, ठीक है, like this. This is your R, okay. Then with center R and radius of same length, मतलब like this only, you need not to change your radius. Mark S and T on the former arc like this. This arc, like this is your S, and put your needle over here, and this is your T, ठीक है। So S and T is there with you like this. This is your S, this is your T. Now with center S and T with the same radius, you have to draw two arcs which meet each other at U like this. One arc from here, one arc from here. This is not your 75 degree, this is your 90 degree. You have to join this point, this is your U na, join this with Q, this is your U, ठीक। तो OQ, UQ is not your 75 degree, this is your angle 90 degree, ठीक। Again with center S and W, this is your W. Now this point is your W. So S and W के साथ with the same radius, you have to again cut two arcs like this which meet each other at Q like this, ठीक है। So this is the angle formed in between 60 and 90. This is your angle bisector of 60 and 90 के बीच का एंगल, that is your 30 degree. तो 30 का हाफ क्या होता है, 15। तो 60 फर्स्ट आर्क होता है, एंगल बाइसेक्ट करने पर 15 सेकेंड आर्क होता है। दोनों को मिला के कितना हुआ, विल गिव यू 75 डिग्री। सो दिस इज हाउ you have joined this O and Q, and you got what angle POQ is equals to 75 degree, ठीक है। Now you have to bisect this angle PQO with Q or V. Bisect means what? Just take like this, ठीक है। You have to see this in this way with radius R and S. Just bisect this angle. In this way you have drawn first 90, then 75, and then bisector of angle 75. This line
ठीक है, दिस लाइन क्यू वी इज योर line of symmetry of angle PQO. So therefore QV is line of symmetry of angle P, Q and O. This is how you are going to complete this question. Now do the next question, question number 2. You have to draw an angle of 147 degree. 147 cannot be constructed, so we will use these two things. ठीक है, these two geometrical equipments or materials, and then you have to draw one line segment. ठीक, this is your line segment, say AB. Okay, with the help of protractor just draw here, you take draw angle 147. Now if I will draw this line up to this mark, ठीक है, this is not your final line, this just forget this point. I am putting this over here, this is your AB only, and you have to draw 147. So in this way you have got your 147 over here. ठीक है, ये आपका 147 है, इसको आप भूल जाइए, दिस इज नथिंग. ठीक है, ए बी यहाँ तक है, उसके बाद बी पे अपने आपने क्या रखा, प्रोटेक्टर रखा, एंड देन मार्क 147 लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट with the help of protector only we have drawn this with center B and the radius of proper length. You have to draw an arc which meets AB and AC. This is your C na, ठीक है, at E and F. ठीक है, so with proper like this, with proper radius. Okay, with B and center and radius of proper length we have drawn like this. ठीक है, this is E and F, E and F, ठीक, and with centers E and F more than half of the length of an arc. मतलब इस आर्क का more than half लेना है आपको, like this, more than half लिया, देखिए more than half है ये आर्क, है ना. You have to construct an angle bisector of this particular angle which you have drawn with the help of protector. ठीक है, so this is done. See, this is your angle bisector of 147 degree over. ठीक है, so this BD is the line of symmetry for angle ABC. So you have to write thus BD is the bisector of angle ABC. ये पूरा एंगल था ना जो ABC, इसका we have constructed the bisector of it. ठीक, तो आई होप कि ये क्लियर है. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज दैट, ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर. वेरी इजी, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन में 90 डिग्री बनाया था, सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट लेना है, ठीक, राइट डाउन सी डी. ओके, देन आपको क्या करना है, डी एस सेंटर, ठीक, प्रॉपर रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू मीट सी डी एट B. ठीक है, then with center B and same radius you have to mark two arcs on that former arc like this. ठीक है, give it the name E F. With the center E and F, cut an arc over here like this, E
and F and join this line. This is your 90 degree. ठीक है, this is your 90 degree angle CDG. You have to construct its bisector. Okay, so again take an arc more than this, more than half से ज़्यादा. Cut an arc over here with B and H as center. ठीक है, B पे निडल रखा, फिर H पे रखा and draw an angle like this. ठीक, this is your angle bisector of an angle 90 degree. Done. ठीक, so this EA मान लो इसको आप. ठीक है, okay, so this is done. So therefore thus angle CDG is a right angle, is the right angle and AD is the bisector of angle CDG. Over. So this is how you have done this question number 3. Now do question number 4. What is that question number 4? Just see. Draw an angle of 153 degree. Okay. Take small measurement so that like this. ठीक है. Say AB. With the help of protractor, draw an angle of 153 degree. This is your 153 degree. देखिए 150 and 3 more divisions. ठीक, this is your 153 degree obtuse angle. Okay, this is your say P. ठीक है, so this is angle ABP is equals to 153 degree. ठीक है, then with the help of protractor we have done this. You have to draw BC as the bisector of ABP. So again take the radius like this. ठीक, take B as radius, B as center, draw an arc like this. ठीक, now with the help of these 2 points, this point and this point, you have to draw an angle bisector of this particular angle. So take more than half angle and cut an arc like this. ठीक, now again put your needle here, cut an arc over here. This will intersect each other at some point. This is the angle bisector of 153 degree. ठीक है, मतलब equal halves. अभी सिर्फ equal half हुए हैं. You have to construct 4 equal halves. ठीक है, so this is your point O, C, D. ठीक है, now with center O and C, cut an arc over here. ठीक, this will be your angle bisector of this side, and with the center D and O, cut an arc over here like this in the same way you did there. Bas, this is your what? 4 equal parts of this particular angle like this. This is done. Earlier we have done 4 equal parts of line segment. Now we have done 4 equal parts of angles. ठीक है, so this is how you are going to do this particular question. So this is your C, this is your D, this is your E. ठीक है, so thus bisectors, which one? B, D, एक ये बाइसेक्टर है आपका, B, C एक ये है, और B और E ये एक बाइसेक्टर है. डिवाइड एंगल ABP into 4 equal
पार्ट्स, खत्म। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट different angles with the help of what? Scale, rounder and this pen or pencil or sketch pen, whatever. I have sketch pen for you, so it can be visible to you all properly. You have to use pencil. ठीक है, so let's start first question. By default it is the first arc whatever we are taking, whatever in this radius, with this radius or with this radius or with this radius or with this radius, the first arc always cut on the segment is on an arc is 60 degree. Very simple it is, just see. ये आपका कोई भी लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ठीक है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट से ए बी, ठीक, with center B with proper radius draw an arc like this, ठीक, okay. Now with center D, this is your D if it is D, ठीक, with center D with the same radius, same length of, you have to mark a point like this on the former arc and this is your E. Also join this EB, this is your 60 degree for sure. आप देख लीजिए, आप यहाँ पे रखिए पॉइंटर, ये ऐसा बिल्कुल ऐसे सेट करना है ना, इसकी स्ट्रेट लाइन और आपकी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी एग्जैक्ट। इसका बी पॉइंट आपके ये 90 डिग्री के पॉइंट से बिल्कुल कोइंसाइड करेगा एंड देन यू हैव टू सी कि आपका ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी 60 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर क्वेश्चन, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का बाइसेक्टर। तो पहले अगर 60 का बाइसेक्टर 30 होता है कि नहीं, इन द सेम वे यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, है ना। तो सबसे पहले अगेन टेक एन एंगल, पहले तो सबसे पहले तो 60 डिग्री जैसा पूरा बना लो, ठीक है, पूरा सेम एज इट इज़ बना लो। ये रहा आपका ए बी बन गया, ठीक है, ए बी विथ बी एस सेंटर विथ प्रॉपर आर्क, ऐसा मेजरमेंट लीजिए। ये आपका डी है, डी पे पॉइंटर रखिए, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री आपको नहीं चाहिए, फर्स्ट आर्क 60 कटता है, ये आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आप डॉटेड लाइन से करेंगे, ठीक है। ये आपका डी ई, ये डी, ठीक। यू हैव टू बाइसेक्ट दिस एंगल, सो विद डी एंड ई एस सेंटर कट एन आर्क ओवर हियर, वन with DS center cut an arc over here, this is your angle bisector over, ठीक है। देखिए कितना प्यार से, कितना इजीली बन गया ये वाला क्वेश्चन। ये हो गया आपका, देखो, thus angle ABF, this AB and this F, angle ABF is equals to 60 का हाफ which is equals to 30 degree, this is your 30 degree, done, ठीक है। now see question number C, 90 डिग्री अगेन सेम कोई भी आपने लेना है क्या, सेगमेंट AB with BS center and proper radius, mark, draw two arcs on this former arc like this and like this, again this thing, this is your 90, very simple, ठीक है। सारे स्टेप्स सेम जैसे आपने अभी तक किया है, ठीक है। दिस इज योर C, दिस इज योर D, दिस इज योर E, दिस इज योर F, so therefore angle ABF is equal to 90 degree, खत्म, ठीक है। and the very important thing is 120 degree, it is also very very simple like 60 degree is there। तो चलिए बहुत सिंपल है, अगेन टेक एनी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, like this,
Okay, say AB. This is your AB. Take B as center with proper arc. ठीक, like this. ठीक है. Now D is a point. D point है. D point को मैं सेंटर लेके ए बी आपका लाइन सेगमेंट है. आपने एक आर्क कट किया विथ सेंटर बी विथ एनी प्रॉपर आर्क, लेंथ प्रॉपर आर्क. डी पॉइंट से आपने एक फिर एक आर्क कट कर देना है. दिस इज योर ई एंड विथ सेंटर ई कट वन मोर आर्क. दिस इज योर 120 डिग्री. वेरी सिंपल. सी, ठीक है. तो ये 120 भी देखिए कितना सिंपल हो गया, खत्म. दिस इज 60. फर्स्ट आर्क कट 60, सेकेंड आर्क कट 60. 60 प्लस 60 120. So this is your 120 degree. Now again for 45 degree. Same steps, repetition of 90 degree wale steps. What is that? Like this. Any segment AB, ठीक, with B as center और A as center, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. A में भी आप ले सकते हो. A as center लेंगे तो आपका ऐसा बनेगा, ठीक, like this. ठीक, ये आपका D हो गया. ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन दिस फॉर्मर आर्क लाइक दिस. ठीक, नाउ दैट इज योर C and E. ठीक, taking C and E as center, cut over here 2 arcs like this. This is your 90 degree. You don't want this. You have to just, you have done earlier, right, draw an angle, right angle triangle and then bisect it. बस bisect it का मतलब क्या होता है, आपने उसका 45 बनाया, है ना. तो 45 बनाया तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा किया है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसा किया है. आपने 90 बनाया देन उसका हाफ बनाया. सेम यहाँ पे हम कर रहे हैं. 90 का हाफ क्या होता है, 45. तो ये हो गया आपका 45. ठीक है, कैसे, हमने फिर यही लिया. ठीक है, ये C E and this is your F. Cut an arc over here like this and from F also, this F you have to put needle over here, cut an arc like this. ठीक है, D and F. That's it. Now this is how you are going to join this line over. देखिए ये आपका है 45 for sure. So this is एंगल ABCDEF. यहाँ कर लेते हैं G. ठीक, सो एंगल BAG is the required angle which is the measure of 45 degree. ठीक है, here it is. Angle ABC is equals to 120 degree. ठीक, now do 135 degree. ठीक है, what is that? See, you have to first draw an angle of 135. कैसे होगा, 90 plus 45. सो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, फिर उसके बाद लेंगे 135 डिग्री. देखो कैसे लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आ गए हम 135 के कॉन्सेप्ट में. 90 प्लस 45 से आ जाएगा आपका 135 डिग्री. ठीक है, ओके. सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस 135. तो आपके पास है 90 और 135. क्या हुआ देखिए यहाँ पे कितना सिंपल है. देखिए ये रहा आपका एक सेगमेंट. ठीक है, से AB. सबसे पहले आप यहाँ पे 90 बनाइए. ठीक, ये रहा आपका, किसी भी आर्क से B को सेंटर लेके 90 डिग्री. ये फर्स्ट आर्क, यहाँ पे सेकंड आर्क, फिर ये ऊपर एक कट, फिर यहाँ से एक ऊपर एक कट. ठीक, फिर ये हो गया आपका 90 डिग्री. ये हो गया आपका 90 से ऊपर बनाना है आपको 45 डिग्री. ठीक है ना, तो ये आपका तो सिर्फ 90 है अभी. ओके, हमको तो 35 बनाना है, 45 और बनाना है. तो क्या करेंगे,
फिर जो ये वापस का एक 90 डिग्री है जिसको हम यहाँ पे मेजर ले लेंगे कुछ डॉटेड लाइन से, ये देखिए ये आपका हो जाएगा डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरी लाइन बना रही हूँ। क्यों दूसरी लाइन बना रही हूँ? रीज़न है उसका, क्योंकि इसी तरफ आपको बाकी का 90 मिलेगा, है ना, और 90 का हाफ ही तो लेना है। और तो ये देखिए ये कर दिया हमने पूरा इसका, ये कुछ ऐसा, ठीक। तो ये हुआ, ये हो गया हाफ इसका, ये हो गया हाफ इस 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल था। इस तरफ 90 बनाया, इस तरफ बाइसेक्टर बनाया, और फिर हमने ये वाली लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, 135 डिग्री। देखिए 90 + 45 135, तो ये पूरा एंगल आपका क्या हो गया, 135। तो दिस इज ए बी एंड मार्क इट ओवर हियर सी, और यहाँ पे दे दीजिए आप जितने नाम दे सकते हैं, डी, ये ई, ये जी, ये एच। ठीक है, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एंगल, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। देखो हाउ सिंपल इज दैट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। अगेन पहले तो 90 डिग्री तक जाएंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एंगल 45 डिग्री, ठीक। तो 45 डिग्री के पहले हमको क्या बनाना है, 90। ये रहा 90। अगेन वेरी सिंपल, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, now these two arcs, very common step, very common step doing this 90 degree fourth time right now, है ना। तो ये रहा आपका 90 डिग्री नहीं चाहिए हमको, हमने कर दिया इसको डॉटेड से। फिर ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये इसको दे दीजिए आप O, दिस C, दिस A, दिस B, टेकिंग O and C एज सेंटर। यहाँ कर दिया आपने हाफ, ये कर दिया आपने बाइसेक्ट। दिस ऑल्सो यू डोंट वांट बट लीव इट। ये आपको 745 डिग्री तो बनाना ही है ना। तो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज योर डी। ठीक, ए बी डी इज योर रिक्वायर्ड एंगल, व्हाट, 45 डिग्री। ठीक है, नाउ यू हैव टू बाइसेक्ट दिस, मार्क ओवर हियर ई, टेकिंग ई एंड सी, कट एन आर्क इन बिटवीन दिस एंगल लाइक दिस। दिस इज डन। ठीक, खत्म। दिस इज योर फॉर 22.5। 45 का हाफ क्या होता है, 22.5। सो दिस इज योर एफ, एंगल ए बी एफ इज हाफ ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो मतलब 22.5 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज योर एंगल ए बी एफ, डन। ठीक, तो ये था बाइसेक्टर ऑफ एंगल 45। अब करेंगे हम ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको एंगल बनाना है, व्हाट इज दैट, 135 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगल ऑफ 135 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये ड्रॉ एन एंगल। ठीक है, तो 135 डिग्री का आपको बनाना है, मेजर करना है 135 डिग्री। कैसे करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ ओ ए एंड देन टेक एनी पॉइंट P, देन ओवर देयर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल ए पी वॉट एवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल लेंगे, एक मेजर लेंगे ओ ए। ठीक, बहुत सिंपल, ओ ए, ये ले लिया हमने O, ये ले लिया हमने A। ठीक है, फिर ये ले लिया हमने एक पॉइंट P। ठीक,
फिर वही 45 जैसे 35 डिग्री अभी अभी हमने बनाया था 135, सेम वैसे ही बनाएंगे। कैसा करेंगे, P को सेंटर लेके एक आपका बन जाएगा ये पूरा सेमी सर्कल, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, ठीक। देन टेकिंग B as center, mark 2 arcs on the former arc like this, 1 and then this 2, ठीक। then this 90 degree, ठीक, this is your 90 degree, okay, this is your 90 degree, you don't need that, है ना। now go over here this side and taking C as center, cut an arc like this, ठीक, C and D, ठीक है, this is your D point, okay। from here you have to cut, from here you have to cut an arc like this, ठीक। this is your 90 का हाफ, ठीक। तो यहाँ आपको मिल गया 90 का हाफ 45, वहाँ आपने बना दिया है 90 डिग्री, 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 होता है। सो दिस इज AB OPE, तो एंगल OPE आपका है 135 डिग्री। अब आप इस OPE को बनाएंगे हाफ, ठीक है। तो ये रहा आपका मोर देन हाफ, लीजिए आप इस एंगल का मोर देन हाफ लिए, ये देखिए मोर देन हाफ का मेजर लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया ऊपर ऐसा कट, फिर ये हो गया इसके ऊपर कट, ठीक, हियर लाइक दिस, ओके। सो दिस इज योर एंगल। अच्छा, यू हैव टू मेंशन ऑल्सो ना कि दिस पॉइंट इज योर F, दिस पॉइंट इज योर B, taking B and F as center, you have to mark over here, ठीक है। and then this point join this, this is the bisector of angle, this is your F, this is your, now this is your G, ठीक। so angle OPG is half of 135 degree, ठीक है। दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर, खत्म। दैट इज 135 डिग्री का हाफ क्या होता है, 67.5 लिखिए या हाफ लिखिए, नो इशू। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल विच इज इक्वल टू 135 एंड देन बाइसेक्टर ऑफ इट, ठीक। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. What is that? Draw a line. You have to draw an angle of 70 degree, then make a copy of it, and then using a straight line, straight edge को यूज़ करते हुए और कंपासेस को यूज़ करते हुए ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे AB, ये कर लिया हमने AB, ठीक। दिस इज योर AB, okay। now taking any arc, any point O on it, take any arc, ठीक है। like if I'll use this only, then I'll come to know how to do the, this is your, ठीक है। I am taking from O, ठीक। तो OBC like this, this is your ठीक। दिस इज COB या BOC इज योर 70 डिग्री, ओके। with the help of protector we have drawn this, ठीक। then draw another line PQ, very simple it is, draw another line PQ like this, sorry PQ, ठीक। take any arc, ठीक है। put your needle over here taking O as radius, take any arc means with any proper radius, take center O and draw an arc like this with the same radius, taking Q as center, draw an arc like this, ठीक, or like this, ठीक।
then from this point, this is point E, this is point F, you just measure this arc from point E and to point F. Take your arc like this, ठीक है? This is the measurement of this arc. Put your pointer over here and cut an arc like this. Khatam. This is your what? G. ठीक, 70 degree over. So this is G, this is H. हो गया? ये है आपका डन. क्या? एंगल पी क्यू एच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. ख़त्म. एकदम कॉपी बन गया आपका. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू विद द सेम रेडियस. यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स एंड देन this angle PQH is 70 degree is the copy of angle BOC. बस over. ठीक. Now question number 9, last question of this chapter and exercise as well. Draw an angle of 40 degree एंड कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल्स को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है. द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन ओनली दीज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक. ये सप्लीमेंट्री तभी होते हैं जब इनका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, और जब इनका मेजरमेंट 90 होता है देन इट इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. तो सप्लीमेंट्री है, 40 डिग्री बना हुआ है, आपको क्या करना है, इसका सप्लीमेंट्री मतलब कि 140 डिग्री बनाना है. ठीक है. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे 40 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर. ठीक. तो लेट्स स्टार्ट. टेक एनी लाइन सेगमेंट ए. I will take like this A and C, say, and take point O over here. ठीक. With the help of protector we have to construct 40 degree like this. ठीक. This is your 40 degree. Okay. So this is then this angle with any measurement, taking C, taking OS radius, and this angle, this is your angle which cuts AC at E and OB at F. ठीक है. आपका ये एंगल है, ये आपका 140 डिग्री है. ठीक है. So you have to draw this supplementary angle. So the supplementary angle is C, this one. Which one? AOF. Angle AOF is 140 degree. That is supplementary angle. ठीक है. Now listen carefully कि आपको एक अगेन रे बनानी है या लाइन बनानी है. ठीक है. That is say PR. ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. ठीक है. सो ये आपका एक PR है. ठीक. दिस इज P, दिस इज R. ओके. देन टेक एनी पॉइंट Q ऑन इट. दिस इज योर Q. ठीक. विथ सेंटर Q एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स PQ एट एनी पॉइंट. ठीक है. So this is your taking Q as center, taking any arc with same radius or whatsoever, like this you have to draw an angle. ठीक है. This से PQ को इसने L पे कट किया. ठीक है. Then with center L and radius equal to EF, इसके जितना EF लेना है आपको. ठीक है. So put your needle over here and measure like this.
है ना। आपको इतना स्ट्रेच करना है अपनी पेंसिल को, राउंडर को, कि वो पॉइंट ई तक पहुंच सके। ये देखिए, ये दोनों में पॉइंट है, ये दोनों देखो, ये दोनों ऐसे, इतना मेजर आपको लेना है। सो पॉइंट एफ पे निडल रखा, पॉइंट ई पे पेंसिल का निडल रखा, और यहाँ पे गए, एल से सेंटर लिया और ऐसे आर्क कट कर दिया। ठीक है, ये आपका कट हो गया। ओके, सो ड्रॉ, यू हैव ड्रॉन एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फॉर्मर आर्क, दिस इज योर फॉर्मर आर्क एट एस। ठीक, join, you have to join QS and produce it like this. ठीक है, this is your, what is that? This is your angle PQS is the copy of supplementary angle AOF. Done. This is how you are going to do this question. सो ये था आपका क्या, सारे क्वेश्चंस ऑफ 14.6। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, 14.6 के भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिक है, ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आप सारे कंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सीखते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके बहुत काम आने वाले स्टूडेंट्स, बिलीव मी, क्योंकि आपका एक एक कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको 9th 10th और 8th में भी कंस्ट्रक्ट करने के बहुत काम आने वाले हैं। आपने एंगल्स पहले से सीख लिए, इवन 7th में भी, तो फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी ही नहीं while doing the constructions in your maths एग्जाम। सो आई होप कि सबको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ वीडियो को प्ले और पॉज करके देखिएगा, और तब भी समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा थ्रू मेलिंग एंड थ्रू मैसेजिंग। सो हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए, कंस्ट्रक्शन करते रहिए। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ही आपको परफेक्शन दिलाएगा इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मुस्कुराते रहिए।